हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरसेक्शन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस सेट ऑपरेटर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड टू रिलेशंस इन रिलेशनल मॉडल। तो सेट ऑपरेटर्स थे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट इंटरसेक्शन ऑपरेटर एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, अब हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी दो रिलेशंस है उन पे अगर हमें सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो दोनों रिलेशन जो है वो यूनियन कंपेटिबल होने चाहिए या तो कंपेटिबल होने चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों में सेम होने चाहिए। एंड फॉर एवरी ith एट्रीब्यूट इन R1 एंड R2 द डोमेन ऑफ द ith एट्रीब्यूट इन R1 must be same as the domain of the ith एट्रीब्यूट इन R2, right? So to perform R1 intersection R2, R1 comma R2 must be union compatible, or you can say just compatible. Okay, union compatible, right? Now R1 इंटरसेक्शन R2 में कौन कौन से टपल्स होंगे? R1 इंटरसेक्शन R2 में वो सारे टपल्स होंगे जो R1 में भी प्रेजेंट है और R2 में भी प्रेजेंट है, राइट? So R1 intersection R2 is nothing but the set of tuples such that the tuple belongs to R1 relation instance and tuple belongs to R2 relation instance as well. ठीक है? Also relational algebra के आउटपुट में सिर्फ यूनिक टपल्स होते हैं and this is also a set operation and in relational algebra the output is always unique, right? So here R1 intersection R2 contains only unique tuples, right? Now let's take some examples. So let's take an example. So let's take a department relation where you have department ID, the name of the department, the phone number of the department and HOD of the department, right? So the department IDs are, let's say 1 2 3 4. The name of the department is, let's say ABCD. Phone number is, let's say 1 2 3 4 2 3 4 3 4 5 and 4 5 6, and the HODs are, let's say 1 7 2 4. Okay, and let's say we have one more relation, that is professor. And here first of all you have employee ID, right? Also यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगा। ड्यूरिंग रिलेशनल अलजेब्रा मैंने ये प्राइमरी की एंड ऑल को मार्क कहीं जगह नहीं किया होगा, बट यू अंडरस्टैंड इट, राइट? देन वी हैव, लेट्स से नेम ऑफ द प्रोफेसर, देन लेट्स से वी हैव एज ऑफ द प्रोफेसर एंड लेट्स से वी हैव सैलरी ऑफ द प्रोफेसर, राइट? So let's say the employee IDs are 2 3 4 5 6 and 7. The name of the professors are, let's say P Q R S T and U. The age of the professor is, let's say 35 37 42 let's say 39 36 and let's say 29. Okay, the salary of the professors is, let's say 30k, let's say 40k, let's say 25k, let's say 70k. यहाँ पे 42 की एज में 25k अच्छा नहीं लग रहा बाकी प्रोफेसर्स के रिस्पेक्ट में, so let me change it. So let's make this 55k. Okay, and here let's say again 43k and here let's make it 35k. Okay, now let's say I give you a question. Also this HOD is a foreign key which is referring to employee ID in professor table. Okay, find employee ID of professors whose salary is more than let's say 45k or who are more than 45k and who are HODs। मतलब कि हमें ऐसे प्रोफेसर्स के एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो कि
जिनकी सैलरी भी 45K से ज्यादा हो एंड जो HOD भी हो। अब ये जो 1 है, लेट्स से वी हैव लेट्स से 1 2 3 ओके, सो यहाँ पे हमें 1 ID वाले प्रोफेसर भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे HOD में 1 है, सो लेट्स मेक दिस 6 as 1 ओके ओके। So now this is referring to this tuple, this 7 is referring to this tuple, this 2 is referring to this tuple and this 4 is referring to this tuple, right? अब हमें क्या चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय आईडी चाहिए उन प्रोफेसर्स की जिनकी सैलरी मोर देन 45K हो एंड जो HOD भी हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज I can take the employee ID of the professors whose salary is more than equal to 45K from the professors table. I can take the HOD IDs of the professors from the department table and इन दोनों के बीच में मैं अगर इंटरसेक्शन कर दूं तो मुझे वो एम्प्लॉय आईडीज मिलेगी जो कि जिनकी सैलरी भी ग्रेटर देन 45K है एंड जो कि HOD भी है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज पाई एम्प्लॉय आईडी सिग्मा सैलरी मोर देन 45K फ्रॉम द प्रोफेसर टेबल, ठीक है? तो ये मुझे कौन कौन से टपल्स देगा, सैलरी मोर देन इक्वल टू 45K वाले कौन कौन से टपल्स है हमारे पास? सो वी हैव दिस 55K 70K ओके, सो मोर देन 45K में हमारे पास 2 ही है, ठीक है? और वो HOD भी होने चाहिए, सो इंटरसेक्शन पाई HOD फ्रॉम द डिपार्टमेंट रिलेशन। तो यहां पे मुझे ये 1 7 2 और 4 सारे मिल जाएंगे, राइट? सो जो पहली मेरी क्वेरी है उसमें मेरे पास क्या कौन कौन सी एम्प्लॉय आईडी आएगी, 4 एंड 5, क्योंकि इनकी सैलरी ग्रेटर देन 45K है, राइट? तो ये जो पहली क्वेरी है उसमें से मुझे मिलेगा एम्प्लॉय आईडी एंड द रिजल्ट विल बी 4 एंड 5। और ये जो दूसरी क्वेरी है, ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, HOD, और यहां पे कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, 1 7 2 4 1 7 2 एंड 4, राइट? ओके, अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि वो सारे टपल्स आएंगे जो कि दोनों में प्रेजेंट हो। दोनों में कौन से प्रेजेंट है, सिर्फ 4, ओके? तो फाइनल जो मेरा आंसर होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें होगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्यों होगा, क्योंकि ये हमने पहले लिखा है क्वेरी में। रिमेंबर R1 इंटरसेक्शन R2 का जो स्कीमा होगा वो R1 को फॉलो करेगा बाय कन्वेंशन, राइट? So employee ID and 4. So this will be my answer. This is the professor whose salary is more than 45K and who is also HOD, right? So this 4 salary is more than 45K and he or she is also HOD, right? तो ये तो 2 अलग अलग टेबल्स थे। अब एक ही टेबल पे अगर कंडीशन लगाई हो तो किस तरह से कर सकते हैं, फाइंड दी लेट्स से एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम of professors, let's say multiple conditions है, whose age is greater than equal to 30 and salary is greater than equal to 40K, ओके? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिलेशन ले सकते हैं जिनमें हमें उन प्रोफेसर्स की एम्प्लॉय आईडी और नेम मिले जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। हमें तो ऐसे एम्प्लॉय आईडी और नेम चाहिए प्रोफेसर्स के जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो एंड जिनकी सैलरी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। तो एक रिलेशन में ये सारे टपल स्टोर कर लेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले, एक में इनको स्टोर कर लेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो आई कैन से पाई एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम sigma age must be greater than equal to 30 from the professor relation intersection pi employee ID comma name of professors where sigma salary is greater than equal to 40K from professor relation, right? अब ये जो पहला रिलेशन है, लेट्स से दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2, तो R1 में क्या आएगा मेरे पास, आई विल हैव एम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ प्रोफेसर्स। कौन कौन आएंगे, जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, ठीक है? तो आई थिंक लास्ट प्रोफेसर को छोड़ के सारे आ जाएंगे, 2 3 4 5 1, राइट? बिकॉज उन सब की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। सो आई विल से 2 3 4 5 and 1, and what are the names I have given,
P, Q, R, S, T. So we have P, Q, R, S and T. Now in R2 I will have the employee ID and name of professors जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 40K है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40K वाली सैलरी किन किन की है? 3. ओके, सो वी हैव 3, 4, 5 एंड 1, राइट. सो बाकी 30K एंड 35K है. सो ये 4 टपल्स आएंगे, दैट इज 3, 4, 5, 1, Q, R, S, T, राइट. सो इन R2 I will have employee ID and name of professor, where here I will have 3, 4, 5, 1. Let me just cross check once more. 3, 4, 5 and 1. Okay, and the name is Q, R, S, T. अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस, R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो क्या होगा? एम्प्लॉय ID एंड नेम. एंड अब ऐसे कौन कौन से टपल्स है जो दोनों में प्रेजेंट है? 3, 4, 5, 1, राइट. सो द फाइनल आंसर विल बी 3, 4, 5, 1 एंड Q, R, S, T, राइट. 3, 4, 5, 1 और Q, R, S, T जो है ये 4 टपल्स, इनकी एज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है एंड सैलरी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ठीक है. एम्प्लॉय आईडी 2 की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, बट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के नहीं है. एंड एम्प्लॉय आईडी 7 जो है उनकी एज भी लेस देन 30 है एंड सैलरी भी लेस देन इक्वल टू 40 के है, राइट. सो अगर हमें ये दोनों कंडीशन चाहिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं. R1 में एक कंडीशन स्टोर कर ली एंड इंटरसेक्शन ले लिया R2 में, और R2 में दूसरी कंडीशन के टपल्स को स्टोर कर लिया. एंड व्हेन वी टेक इंटरसेक्शन, जो टपल्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे रिजल्ट में रहेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरसेक्शन ऑपरेटर. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट सेट डिफरेंस ऑपरेटर. थैंक यू.